Good morning, students. Today we are going to do our fifth chapter of the book Moments, and the name of the chapter is The Happy Prince. Before we start, students, tell me one thing. How do you feel when you help the needy? Yes, it gives us joy. We feel satisfied. So, here in this story, the happy prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had fires for eyes and a ruby in his sword, but he wanted to part with all the gold that he had and his precious stones. So let's find out, why did he want to part with all these things? Happy Prince. High above the city on a tall column. Column is here, podium, stage, stood the statue of the happy prince. So, in a city, in the higher area, there was a statue of happy prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. Gilded here means covered with. The statue was covered with leaves of fine here means thin, or it can also indicate bright. So thin bright gold leaves were on the statue of the happy prince. The statue was covered with the fine thin leaves, with the bright thin leaves of the gold. For eyes he had two bright spurs, and a large red ruby glowed on his sword hilt. Sword here, glowed here means gleamed, shine, and hilt here means handle, shaft, जहाँ से स्वॉर्ड को पकड़ा जाता है, that is called hilt, shaft, handle. So in the city there was a statue of happy prince which was placed on a tall podium, and the statue was covered with thin and bright leaves of gold, and in place of eyes it had two bright spheres, and a red color ruby was placed in the handle of the sword. One night there flew over the city a little swallow. तो जो स्टैचू है सिटी में लगी हुई ऊंची जगह पर, पोडियम पर, उस स्टैचू के ऊपर जो है वो थिन फाइन गोल्ड की लीव्स लगी हुई हैं, और आँखों में दो जो हैं ब्राइट स्फायर्स लगे हुए हैं, और जो तलवार है उसके हैंडल के ऊपर एक रेड कलर की रूबी जो है वो शाइन कर रही है. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वैलो. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. So, in students in science, we have already read that कि birds जो होते हैं वो migrate करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर. जब वेदर पैटर्न चेंज होता है तो वो माइग्रेट कर जाते हैं. दैट इज़ हैपनिंग हेयर विद द स्वैलो बर्ड, कि जो स्वैलो बर्ड के फ्रेंड्स हैं वो इजिप्ट चले गए 6 वीक्स बिफोर, लेकिन वो वहाँ पर अकेला रह गया था पीछे. एंड देन ही ऑल्सो डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू. इजिप्ट इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री. All day long he flew, and at night time he arrived at the city. तो इजिप्ट से जब वो चला था सुबह डे टाइम में, उसको अब रात हो गई है जब वो सिटी पे पहुंचा है जहाँ पर हैप्पी प्रिंस की स्टैचू है. वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड. आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस. तो वो अपने आप से कह रहा है कि वेयर शैल आई पुट अप. पुट अप हेयर मीन्स बोर्ड, कि कहाँ लैंडिंग करूँ, कहाँ उतरूँ. वो उड़ रहा है तो वो उड़ते हुए सोच रहा है कि कहाँ पर उतरूँ. मे बी जो टाउन है उसने प्रिपरेशंस कर ली हैं. देन ही सा द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. कॉलम हेयर मीन्स पोडियम, स्टेज. तब उसको एक बड़ी सी स्टैचू नज़र आती है पोडियम के ऊपर. आई विल पुट अप देयर.
कि यहीं लैंडिंग करूँगा। ही क्राइड, इट इज़ अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, कि अवेलेबिलिटी ऑफ एयर जो होगी, फ्रेश एयर जो होगी उसके पास, उसकी अवेलेबिलिटी होगी फ्रेश एयर की. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. अलाइटेड हेयर मीन्स केम डाउन. It means that the bird descended from the air and settled down. कि bird जो था वो उड़ता हुआ नीचे आ गया. कहाँ पर आ गया? Just between the feet of the happy prince. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around. तो अपने आप से वो क्या कहता है बिल्कुल धीरे से जब वो चारों ओर देखता है कि आज उसके पास एक गोल्ड का बना हुआ बेडरूम है. Come to next page now. He prepared to go to sleep, और तैयारी करता है सोने की. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. कि जैसे ही वो अपने जो हेड था, अपने विंग्स के नीचे रख रहा था, लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बड़ी सी पानी की बूंद उसके ऊपर गिर जाती है. व्हाट अ क्यूरियस थिंग. क्यूरियस हियर मीन्स इंटरेस्टिंग, कि कितनी अजीब स्ट्रेंज बात है, इंटरेस्टिंग बात है. एक राइट, देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज़ रेनिंग. कि एक भी क्लाउड नहीं है स्काई में, स्टार्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हैं, ब्राइट हैं, शाइन कर रहे हैं. एंड येट इट इज़ रेनिंग, फिर भी रेनिंग हो रही है. देन अनदर ड्रॉप फॉल, और इतने में अनदर ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. तो वो अपने आप से कहते हैं कि क्या फ़ायदा एक स्टैचू का अगर ये रेन को कीप ऑफ, दूर नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती. I must look for a good chimney pot. Look for here means search, कि मुझे सर्च करनी चाहिए एक चिमनी पोट की, कि चिमनी के नीचे जो ऊपर जो कवर होता है उसके नीचे वो सोच रहा है कि भाई उसको सर्च करनी चाहिए, उसके नीचे वो शेल्टर ले ले. एंड ही डिटर्मिन टू फ्लाई अवे, और वो विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि अब मुझे उड़ना है यहाँ से. बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल. लेकिन जैसे ही वो अपने विंग्स को फैलाने की कोशिश करता है, खोलने की कोशिश करता है, द थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप, और ऊपर देखता है. What did he see? क्या देखता है? The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. तो क्या देखा उसने? कि हैप्पी प्रिंस की जो आईज़ थी दे वर फील्ड विद टीयर्स, और टीयर्स जो थे वो गोल्डन चीक्स, उसकी गोल्ड लीव्स लगे हुए थे, और उनकी जो गोल्ड की चीक्स थी उसके ऊपर से वो रनिंग डाउन नीचे बह रहे थे. हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट में फेस उसका बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था. एंड द लिटिल स्वेलो वॉज फील्ड विद पिटी, और जो छोटा स्वेलो बर्ड था दैट वॉज फील्ड विथ पिटी. Who are you? he said. उसने पूछा कौन हो? स्वेलो ने पूछा कौन हो? I am the happy prince. और स्टैचू जो है वो आंसर कर रही है, I am the happy prince. Why are you weeping then? asked the swallow. You have quite drenched me. Drenched here means to make wet. Drenched means to make wet. Swallow is asking why the statue is weeping. और उसने तो बिल्कुल भिगो ही दिया था. When I was alive and had a human heart, answered the statue. तो now the happy prince, statue of happy prince is answering कि जब वो alive था, जिंदा था, and had a human heart, जब वो human being था, ह्यूमन हार्ट था उसके पास. आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, तब मुझे पता नहीं था कि टीयर्स क्या होते हैं. फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं एक पैलेस में, महल में रहता था. वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ किसी भी तरह का कोई भी सोरो सफरिंग्स नहीं होती. माई courtiers called me the happy prince. Courtiers here means the officials who worked in his palace.
उसको क्या कहते थे, हैप्पी प्रिंस। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और सच में मैं हैप्पी था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और इस तरह से मैं जिया और इसी तरह से मर गया। सो वाई द हैप्पी प्रिंस वाज कॉल्ड हैप्पी, बिकॉज he didn't know what tears were, as because he lived in the palace and no sorrow, no suffering was allowed to enter into the palace, and the courtiers called him happy prince. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. तो क्या कह रहा है हैप्पी प्रिंस, बट ही इज डेड नाउ एंड his courtier had set him so high that he can see the ugliness. पहले वो पैलेस में था, जब जिंदा था तो उसको ugliness, sufferings का नहीं पता था. But now when he is a statue और उसको पैलेस के बाहर एक ऊंची जगह पर सेटअप कर दिया गया है, तो वो अपनी जो सिटी है, सिटी की जितनी भी मिजरीज हैं, सोरोज हैं, उनको वो देख सकता है. एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, और उस पहले हार्ट था वो ह्यूमन हार्ट था, एंड नाउ हिज हार्ट इज़ मेड अप ऑफ लेड, येट आई कैनॉट चूज़ बट वीप. और अब वो उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो किसी की हेल्प नहीं कर सकता. एंड क्या कर सकता है सिर्फ, ही कैन ओनली वीप. दैट मीन्स व्हेन ही वॉज ए ह्यूमन बीइंग, he didn't know what the sufferings were, what the sorrows of the world. At that time he was capable to help the people, but now he is a statue and now he can see the sufferings of the people, but as a statue, being a statue, now he cannot help them. What, is he not solid gold, said the swallow to himself. अब swallow अपने आप से बोल रहा है क्या सॉलिड गोल्ड का नहीं है. ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, और स्वेलो बर्ड जो है वो इतना पोलाइट है कि वो कोई भी पर्सनल कमेंट्स नहीं करना चाहता प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के ऊपर. फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस. तो जो स्टैचू है वो धीमी सी म्यूजिकल वॉइस में कह रही है कि फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस, कि दूर एक छोटी सी गली में एक गरीब का घर है. वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन एंड थ्रू इट कैन आई सी अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल, कि विंडो में से मैं देख सकता हूँ एक वुमेन जो है वो टेबल पर बैठी है. हर फेस इज़ थिन एंड वोन. वोन हेयर मीन्स टायर्ड, थिन एंड वोन हेयर मीन्स टायर्ड एंड ओल्ड. थिन एंड worn हेयर मीन्स टायर्ड एंड ओल्ड, की फेस जो है उसका वो ओल्ड लग रहा है, थका हुआ लग रहा है. एंड शी हैज़ कॉरस, कॉरस हेयर मीन्स रफ. रेड हैंड्स हैं उसके. ऑल pricked बाय नीडल, pricked, pricked हेयर मीन्स हर्ट. किससे हर्ट हुए हुए हैं वो, नीडल से. इंजर्ड हैंड हैं उसके, प्रिक्ड हैं, सुइयाँ चुभी हुई हैं उनमें. फॉर शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, क्योंकि वो जो है वो कपड़े सिलती है. सीमस्ट्रेस मीन्स लेडी हु स्यू क्लोथ्स, जो कपड़े सिलती है लेडी उसको सीमस्ट्रेस बोलते हैं. शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सेटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल. तो वो क्या कर रही है सीमस्ट्रेस, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है फ्लावर्स की एक सेटिन के गाउन के ऊपर, जो कि क्वीन की जो सबसे प्यारे वाली मेड है उसने वो नेक्स्ट कोर्ट बाल, बाल होती है पार्टी कि नेक्स्ट जो कोर्ट में पार्टी होनी है उसमें उसने पहना है. इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल. और उस सीमस्ट्रेस के रूम में एक कॉर्नर में उसका एक छोटा जो बॉय बेबी है वो लाइंग इल, बीमार लेटा हुआ है. ही हैज़ फीवर एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस. फीवर है एंड ही इज़ डिमांडिंग ऑरेंजेस. हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर. लेकिन मदर जो है वो पुअर है. ही हैड नथिंग टू गिव हिम एक्सेप्ट रिवर वाटर. सो ही इज़ क्राइंग, इसीलिए वो बॉय बेबी रो रहा है. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ड. तो स्वेलो रिक्वेस्ट कर रहा है
स्वेलो को रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन? हैप्पी प्रिंस. सो हैप्पी प्रिंस इज रिक्वेस्टिंग द स्वेलो टू take the ruby out of his sword to the seamstress. My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. Pedestal means column, base, stage, podium. कि मेरे जो पैर हैं वो fastened हैं, fixed in a place. Fastened here means fixed in a place. कि एक जगह पर fix है मेरे पैर, मैं चल नहीं सकता, जाकर help नहीं कर सकता. तो क्या तुम मेरी जो रूबी है स्वॉर्ड में से, स्वॉर्ड की हिल्ट में से वो निकाल कर उसके पास ले जाओगे? हैव अ नाइस डे.